Hello students, welcome to the class. Students, in the last class I had completed the chapter functions. Today we are going to solve some questions on this chapter. From this chapter normally output questions are asked by CBSE. That means a Python code will be given to you in the question paper. You will be asked to find the output of that particular Python code. Clear? So let's begin the class. I have written one question. Suppose this is a Python code. If it is asked in the question, find and write the output of this following Python code. ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है. इसमें आपको क्या करना है? You have to find the output. आपको output predict करना है. What will be the output? If you are executing this program, what will be the output? That you have to write on the answer sheet. Clear? So, as you know, this chapter is based on functions. So question will be asked related with functions. Functions के जितने भी concepts हैं उनको बेस करके ये क्वेश्चन दिया होगा. नॉर्मली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड. आउटपुट जो क्वेश्चंस होता है वो 2 मार्क्स का हो सकता है या फिर 3 मार्क्स का, जिसमें फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है. इन दिस क्वेश्चन हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन जब दिया होता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको पता है यू हैव टू सी द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो आपको देखना है. दिस इज द फर्स्ट लाइन. द कंट्रोल विल कम हियर, but since it is a function it will be read but it will be ignored until it is called. तो ये read किया जाएगा but it will be ignored. So it will go to the first line of the main segment. क्योंकि ये जितने भी lines है प्रोग्राम के, जितने भी statements है वो इस function का है. The name of the function is fun. Clear? Function का नाम है fun. Parameter is s. Only one parameter is there, s. So these are the statements that comes under this function fun. Okay, so here this is the main segment. यहाँ से आपका main segment शुरू होता है जहाँ पर केवल एक ही statement है, that is for calling the function fun. यहाँ पर जो पहला line है जो main segment का, उसमें हम उस function को call कर रहे हैं. किस function को? fun function को. And you are passing the argument. This is the argument. क्योंकि आपको पता है parameter कितना है? fun function का only one parameter is there, so you need an argument for this parameter s. इस पैरामीटर के लिए आपको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए. यू आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट. द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग टाइप. यू कैन सी विद इन सिंगल कोड इट इज गिवन. इट इज स्ट्रिंग टाइप. आर्ग्यूमेंट इज school2@com. school2@com. This is the argument. This will be passed to the function s. So first this statement will be executed. As soon as this statement is executed, the control will jump to the function fun. क्योंकि यहाँ पर function को call किया जाता है. इसके बाद control कहाँ पर jump होगा? यहाँ पर, जहाँ पे function को execute किया जाएगा. Clear? So the parameter s will take this argument school2@com. Now what is the first line inside the function fun? You can see k equals to len within bracket s is given. That means as we have seen len, what is the use of len function? To find the length of the string. जो भी आप string देते हैं उसका length find out करने के लिए हम इस function को use करते हैं len. That means when this statement is executed it will find the length of the string जो कि s में present है. s में क्या present है? school2@com. That means first it will calculate the length of this string. First we will write this like this. ये आपको साइड में रफ में करके लिखना है. आप साइड में लिख दीजिए पहले जो आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है school2@com. देन यू आर फाइंडिंग द लेंथ. लेंथ आपको पता है इंडेक्सिंग आप 0 से शुरू करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यू कैन सी द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. जो भी स्ट्रिंग होता है आप 0 से इंडेक्सिंग कर दीजिए. 0 से इट विल गो टिल द लास्ट कैरेक्टर. How many characters are there? Total length is 11. 0 से 10 है. That means the length of the string is 11. Clear? So you will get k equals to 11. ये statement जब execute होगा length of the string find out किया जाएगा. So it will calculate the length of this string. You will get the answer as k equals to 11. Okay, next line. See, m equals to, you are giving just double quotes. लेकिन double quotes के अंदर कोई भी string नहीं लिखा हुआ है. That means it is just an empty string. यहाँ पर एक empty string आप create कर रहे हैं and that will be stored in the variable m. ये आपका empty string है. Clear? Now
फॉर आई इन इट, यहाँ पर आपका लूप स्टार्ट होता है. नॉर्मली आउटपुट क्वेश्चंस में लूप को यूज किया जाता है. यू कैन सी फॉर लूप इज यूज फॉर आई इन रेंज. आपको पता है लूप हम किस लिए यूज करते हैं? इफ़ यू वांट टू रिपीट सर्टन स्टेटमेंट्स मेनी टाइम्स, अगर आप स्टेटमेंट्स को, कुछ प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, देन आप क्या यूज करते हैं? लूप. फॉर आई इन रेंज, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसके लिए देखिए रेंज फंक्शन दिया हुआ है. रेंज आपको पता है जो भी आप स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू देंगे उतने टाइम्स वो लूप एग्जीक्यूट होगा. दैट मीन्स लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पर जो भी आप स्टॉप वैल्यू देते हैं उसे आपको -1 वहाँ तक लेना है. क्लियर? स्टार्ट वैल्यू जो होगा दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. दैट मीन्स व्हेन द फर्स्ट टाइम लूप इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i? इट विल टेक द फर्स्ट वैल्यू दैट इज 0. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज k. द लूप विल एग्जीक्यूट, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? until you get the value k. k का वैल्यू क्या है? 11. तो आपको पता है जब भी आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं जो भी स्टॉप वैल्यू दिया होता है उससे आपको प्रीवियस -1 लेना है. सो यू नो द वैल्यू ऑफ k इज 11 जो कि हमें लेंथ से मिला है, लेंथ फंक्शन से. सो 11 - 1 दैट इज 10. दैट मीन्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 0 to 10. क्लियर? नाउ so the first time when the loop is executed the value of I will be 0. Clear? Now inside this loop these statements, these are the statement that comes under this for loop. आप इंडेंटेशन देखकर समझ जाना चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट किस फंक्शंस के अंदर या किस ब्लॉक के अंदर आता है. क्लियर? यू कैन सी यहाँ पर ये जितने भी इंडेंट किया हुआ है ये इस फॉर लूप का है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो इस फंक्शंस का है. क्लियर? नाउ inside this for loop you are checking, you are using if. as I told selection statement if को हम क्यों यूज करते हैं? if you want to check certain condition. if का यूज क्या है? कुछ कंडीशन को चेक करने के लिए. and based on the result of the condition the statements are executed. that means जब भी कोई कंडीशन को चेक किया जाता है you will get 2 types of answer, true और false. okay? सो ट्रू होगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट मीन्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली द स्टेटमेंट इनसाइड दिस ब्लॉक, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ओनली 1 स्टेटमेंट इज देयर, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 2 प्रोबेबिलिटी है, इधर यू विल गेट ट्रू और फॉल्स. फॉल्स होने से नेक्स्ट इट विल गो टू एलिफ पार्ट. That means this statement will not be executed if the condition is false. Clear? So यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक होगा? If s of i, s of i means it will check s of i में आपको पता है first time जब loop execute किया जा रहा है what is the value of i? It is 0. That means you are checking s of 0, the character present in the index value 0, whether it is इन अपर केस. क्योंकि यहाँ पर आप लिख रहे हैं इफ एस ऑफ आई डॉट इज अपर, ये एक मेथड है, फंक्शंस है जिसमें ये चेक हो रहा है एस ऑफ आई में जो भी कैरेक्टर है वेदर इट इज इन अपर केस, दैट मीन्स कैपिटल लेटर है कि नहीं है. यू कैन सी एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 में आपको पता है दिस इज एस, यहाँ पर एस इज द पैरामीटर जिसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास किया गया था? school2@com. ओके? एस ऑफ 0 व्हाट इज देयर इन द इंडेक्स पोजिशन? 0. 0 में आपको कौन सा कैरेक्टर है? दैट इज स्मॉल s. दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स. s ऑफ i में स्मॉल s है, दैट इज नॉट मैच्ड विथ अपर केस, ये अपर केस नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. नाउ देन व्हाट विल हैपन? इट इज फॉल्स, देन इट विल गो टू एलिफ पार्ट. ये कंडीशन फॉल्स हो जाने से देन इट विल चेक अनदर कंडीशन. एलिफ पार्ट में वन मोर कंडीशन इज गिवन, इट विल चेक s of i dot is alpha. What is the use of is alpha? It will check whether the character present in s of i it is alphabet or not. Alpha means alphabet. Okay? You can see s of i means s of 0, small s is there, that means that is an alphabet. So this condition is true. तो जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट किया गया है, पहला कंडीशन फॉल्स हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू द एलिफ पार्ट जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है. स्मॉल s अल्फाबेट है. नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू यू नो द स्टेटमेंट इनसाइड दैट ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो ये एलिफ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है? m इक्वल्स टू m प्लस s ऑफ i डॉट अपर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा.
because this condition is true, it is an alphabet. Clear? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, व्हाट इज हैपनिंग, m इक्वल्स टू m प्लस, आपको पता है व्हाट इज m, m क्या है, आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ब्लैंक है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, s ऑफ i में जो भी कैरेक्टर है दैट इज स्मॉल s डॉट अपर, दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग टू अपर केस. s ऑफ i में जो भी कैरेक्टर है, जो भी अल्फाबेट है, इट शुड बी कन्वर्टेड टू अपर केस, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होना है, एंड दैट विल बी कंकैटिनेटेड. यहाँ पर प्लस देखिए, जब भी आप स्ट्रिंग के साथ प्लस को यूज करते हैं दैट एक्ट एज एन कंकैटिनेशन ऑपरेटर, यानी जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है m में, इट विल बी कंकैटिनेटेड विद m. सो आपको पता है m क्या यहाँ पर ब्लैंक है, दैट मीन्स स्मॉल s विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल S एंड दैट विल बी जॉइंड हियर. सो ब्लैंक है तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, कैपिटल S. ये सब हम साइड में रफ में करके देखेंगे. देन अब क्या कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा, नो, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं जंप होगा. देन अगेन लूप विल बी इंक्रीमेंटेड, द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीमेंटेड. एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया है, कंडीशन मैच हो गया है, देन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i विल बी, इट विल बी इंक्रीमेंटेड, दैट इज +1. नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 1, 0 पहले था, अब इंक्रीमेंट होगा, देन इट विल बी 1. नाउ s ऑफ i, दैट मीन्स s ऑफ 1, s ऑफ 1 में चेक किया जाएगा, अगेन द सेम कंडीशन विल बी चेक, s ऑफ 1 वेदर इट इज इन अपर केस. यू कैन सी s ऑफ 1 में कौन सा कैरेक्टर है, स्मॉल c है, इट इज नॉट एन अपर केस, सो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है. देन कंट्रोल विल कम हियर, एलिफ पार्ट जिसमें चेक हो रहा है वेदर इट इज एन अल्फाबेट. यू कैन सी स्मॉल c, इट इज एन अल्फाबेट, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज मैच्ड. ये कंडीशन मैच होने से अगेन आपको पता है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, m इक्वल्स टू m प्लस s ऑफ i, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अपर केस. सो स्मॉल c विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल C एंड इट विल बी कंकैटिनेटेड विद m. आपको पता है अब m का वैल्यू क्या है, m में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, आपने जो प्रीवियस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद m में अब कौन सा कैरेक्टर आ गया है, कैपिटल S ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके साथ कंकैटिनेट होगा जो करेंटली s ऑफ i में है. s ऑफ i में स्मॉल c है, दैट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू अपर केस एंड इट विल बी कंकैटिनेटेड विद दिस स्ट्रिंग. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है m इक्वल्स टू m प्लस, m में जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैटिनेट करना है आफ्टर कन्वर्टिंग टू अपर केस, and that will be again stored in the variable m. Clear? In this way, next value of i will be 2. अगेन आप देख सकते हैं HOOL, यहाँ तक आपका कौन सा कंडीशन मैच होगा, सेकेंड वाली कंडीशन, क्योंकि ये चारों कैरेक्टर्स जो है वो अपर केस में नहीं है, तो इतनी बार जब लूप चलेगा सेकेंड कंडीशन विल बी मैच्ड, दैट इज एन अल्फाबेट, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू अपर, सो यू विल गेट SCHOOL. क्लियर? दैट मीन्स जब तक i का वैल्यू 5 था आपको इस तरह आउटपुट मिल गया है. नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज 6, 5 के बाद इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 6 होगा, सो s ऑफ 6 में आप देख सकते हैं कौन सा कैरेक्टर है, दैट इज 2. नाउ इट विल बी चेक, इट इज नॉट एन अपर केस, इट इज नॉट एन अल्फाबेट, दैट मीन्स ये कंडीशन भी मैच नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर जब ये कंडीशन भी मैच नहीं होता है देन वन एल्स पार्ट इज गिवन. सो ये एल्स पार्ट में कंट्रोल तभी आएगा जब ऊपर की जितने भी कंडीशंस है अगर वो फॉल्स हो जाते हैं. क्लियर? सो बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, सो कंट्रोल विल कम इनटू द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट में आप देख सकते हैं m इक्वल्स टू m प्लस, आपको कंकैटिनेट क्या करना है विद द कैरेक्टर BB, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसमें आपको क्या कंकैटिनेट करना है, BB. दैट मीन्स आफ्टर दिस 2 विल बी रिप्लेस्ड विथ BB. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. समझ में आपको? देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i विल बी, आफ्टर दिस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i विल बी 7, s ऑफ 7. s ऑफ 7 में आप देख सकते हैं इट इज नॉट एन अपर केस कैरेक्टर, इट इज नॉट एन अल्फाबेट, सो it will go to the else part. else part में आपको पता है again it will be concatenated with BB. That means after BB again BB will come. This is for 2 and this BB is for @ Clear? Next the value of I will be 8. 8 आप देख सकते हैं again कौन से कंडीशन मैच होगा,
यहाँ पर बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है COM सब स्मॉल लेटर में है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा. कंट्रोल विल कम हियर, जिसमें चेक हो रहा है इट इज एन अल्फाबेट. सो व्हाट इज हैपनिंग, if it is in alphabet so it will be converted to uppercase, that means you will get COM. hope you have understood. so in this way loop will be executed. इस तरह की क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको लूप देखना है, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. as you have seen with the help of range function 0 to k जो भी होगा, स्टॉप वैल्यू जो भी होगा दैट -1 वहां तक लेना है. सो लूप 0 से k मीन्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द वैल्यू ऑफ i इज 10. जैसे वो इंक्रीमेंट होकर 11 होगा, कंडीशन बिकम फॉल्स, तो ये लूप से आप एग्जिट हो जाएंगे. लूप से एग्जिट होना मीन्स द कंट्रोल विल कम हियर. जब ये लूप एग्जिट हो जाता है, लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होना है, वंस इट इज कंप्लीटेड द कंट्रोल विल कम हियर. यू कैन सी द इंडेंटेशन, द लेवल ऑफ इंडेंटेशन. नाउ द प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर, प्रिंट m वॉट एवर प्रेजेंट इन द वेरिएबल m. मेमोरी रेफरेंस जो m में जो भी वैल्यूज है वो आपको यहाँ पर प्रिंट होता है. दैट मीन्स जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता है ईच एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा. वंस द कंप्लीट लूप इज एग्जीक्यूटेड, लूप कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में देते हैं प्रिंट m. दैट मीन्स यहाँ पर कंट्रोल कब आएगा, जब ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है. So you are printing the value of m. You can see the value of m is now it is in capital letters school BB com. Clear? So you will get the output as, you have to write answer as school small b then capital COM. Clear? Students, we'll see the next question. You can see again here output, you have to find the output of this particular Python code. This is the function, this is the function definition. The name of the function is change. यहाँ पर देखिए there are two parameters, one is p, another one is q. p and q are the two parameters. इसमें देखिए जो second parameter है वहाँ पर देखिए default value दिया हुआ है. हमने पढ़ा था default argument. That means if you are not passing argument for this parameter q, then it will take the default value that is 30. इस तरह से हम assign कर सकते हैं. So these are the statements inside this function change. So when this program is executed, which is the first line that will be executed? This will be read but it will be ignored. So control will go to the main segment. This is the main segment of the program. The first line is r equals to 150. Seeing the indentation level, आप indentation देखकर आप समझ जाएंगे कौन सा main segment का पहला line है. So यहाँ पर देखिए the first line is r equals to 150. यहाँ पर आपको साइड में आप लिखिए कि r equals to 150. Now second line is you are assigning a value s equals to 100. In Python you have to remember whenever you are using this assignment expression, assignment statement जब आप लिखते हैं, so that means automatically it is creating a variable s. आप इस तरह से लिखते हैं, that means you are creating a variable s that is pointing to the value 100. So s is 100. Now next line is r equals to change. Here you are calling the function change. यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं change. So the control will go here. यहाँ पर देखिए you are passing the argument, क्योंकि आपको पता है इस फंक्शन में दो पैरामीटर है, that means you have to pass two arguments. So अगर आप एक आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे, one more argument, आप डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया जाएगा. But here when this function is called, you are passing two arguments. One is r, another one is s. The value present in r and the value present in s, that is passed to the parameter p and q respectively. So after executing this, the control will go here. So the value of p is, r का जो value होगा that will be assigned to p. So r का जो value है that is assigned to p, that is 150, and s का जो value होगा that will be assigned to q. तो जब आप इस तरह से वैल्यू पास करते हैं, आपको पता है q के लिए ऑलरेडी वैल्यू दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू इज गिवन. सो वेदर दैट वैल्यू विल बी टेकन और द न्यू वैल्यू दैट इज पास्ड दैट इज टेकन. यू हैव टू रिमेंबर डिफॉल्ट वैल्यू जब किसी भी पैरामीटर का दिया होता है और जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, यू आर पासिंग वैल्यू फॉर दैट आर्ग्यूमेंट, दैट पैरामीटर ऑल्सो, जिसके लिए डिफॉल्ट दिया गया है. सो जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं दैट विल बी टेकन. क्लियर? So that means the value of s that is 100 will be taken to the parameter q. यानी वो default value यहाँ पर replace हो जाएगा. Then now this function will be executed change. What is happening inside this function? You can see the first statement is p equals to p plus q. What is the value of p?
150. That means you are calculating P equals to P plus Q. यहाँ पर क्या होगा? You know the value of P is 150 plus the value of Q is 100. Okay? So it will be 250. So this is the value of P after executing this statement. Now the value of P is changed to 250. Next statement, Q equals to P minus Q. यहाँ पर आपको क्या करना है? Q equals to P minus Q. What is the value of P here? आपको ये वैल्यू नहीं लेना है बिकॉज द वैल्यू इज चेंज्ड, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ P इज चेंज्ड. P का वैल्यू अब 150 से चेंज होकर क्या हो गया है? 250. दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट विथ 250. अगर आप 150 से करेंगे आंसर विल बी रॉन्ग. सो 250 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज इक्वल्स टू S, दैट इज 100. 250 minus 100, that will be 150. So this is the value of P and this is the value of Q. ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया है. देन यू आर प्रिंटिंग, क्योंकि आपको आउटपुट में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होता है वो आपको लिखना है. प्रिंट में आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ P. यहाँ पर बीच में आपको हैश सिंबल लगाना है. देन Q, दैट मीन्स व्हाट विल बी प्रिंटेड. ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा यू विल गेट द आउटपुट एज, सबसे पहले आपको स्क्रीन में क्या मिलेगा? द वैल्यू ऑफ P इज 250. देन उसके साथ क्या सिंबल को मर्ज किया गया है? यू आर गिविंग हैश सिंबल. देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ Q. Q में कौन सा वैल्यू है? 150. सो दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. यू गेट 250 hash 150 on the screen. Clear? Then after that you can see one return statement is there. That means this function change is returning a value. एक value return कर रहा है. That means it is a non-void function. So what it is returning? It is returning the value of P. So P का value that means 250 return करेगा after executing this function. Clear? So that value जो ये function return कर रहा है, आपको पता है क्या value return हो रहा है? 250, the value of P. Now again control will come here. जहाँ से कॉल किया गया था यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अ वेरिएबल इज गिवन r इक्वल्स टू यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन. दैट मीन्स वॉट एवर वैल्यू दिस फंक्शन इज रिटर्निंग, ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल r. नाउ इट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल r. सो द वैल्यू ऑफ r इज नाउ 250. सो r का वैल्यू चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम 250. 150 से चेंज होकर 250, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा था. द वैल्यू पॉइंटेड बाय द वेरिएबल P दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल R. नाउ नेक्स्ट लाइन यू कैन सी प्रिंट. यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ R हैश सिंबल S. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R नाउ? R आप देख सकते हैं 150 से चेंज होकर 250 हो गया है. दैट मीन्स यू विल गेट 250 हैश सिंबल. देन वैल्यू ऑफ S. यहाँ पर देखिए S का वैल्यू क्या है? इट विल टेक द ग्लोबल वैल्यू. द वैल्यू ऑफ S इज 100. सो दैट विल बी प्रिंटेड 250 हैश 100. R का वैल्यू यहाँ से मिला है जो कि चेंज हुआ था विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन और हैश सिंबल. देन S का वैल्यू यहाँ पर ग्लोबली देखिए डिफाइन किया है. द वैल्यू ऑफ S इज 100. इट इज नॉट चेंज, सो इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, दैट इज 100. ओके, नेक्स्ट इज अगेन when this statement is executed again you are calling the function change. यहाँ पर फिर से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, चेंज फंक्शन को. यहाँ पर देखिए आपको आर्ग्यूमेंट पास करना था. यहाँ पर देखिए दो पैरामीटर है बट यू आर पासिंग ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट, ओनली वन आर्ग्यूमेंट यू आर गिविंग. दैट मीन्स द सिंगल आर्ग्यूमेंट दैट यू आर पासिंग दैट इज द वैल्यू ऑफ S. इट विल बी गिवन टू द पैरामीटर P. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ P विल बी, you will get the value as 100, क्योंकि आपको पता है you are giving the value present in S. S में जो भी वैल्यू होगा that is passed as an argument to the parameter P. तो P में क्या होगा? the value of S is 100, so it will be given as 100. पैरामीटर P का वैल्यू क्या है? 100. देन Q के लिए देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है. you are not given second value. that means if you are not passing any argument, then if the default value is present in the parameter in the function definition, then that default value will be taken. जैसे मैंने पहले बताया था जब default value आप देते हैं, if you are passing the argument for that parameter that will be taken, but if you are not passing, जैसे इस केस में देखिए
q के लिए कोई भी वैल्यू पास नहीं किया गया है, देन इन दैट केस द डिफॉल्ट वैल्यू 30 विल बी टेकन. सो द वैल्यू ऑफ q इज 30, डिफॉल्ट वैल्यू 30 को लिया गया है. देन अगेन दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. व्हाट इज हैपनिंग? p इक्वल्स टू p प्लस q. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 100 प्लस 30. You will get the answer as 130. Okay, next q equals to p minus q. What is the value of p? यहाँ पर चेंज हो गया है, p का वैल्यू 100 से 130 हो गया है. That means you have to do 130 minus what is the value of q? 30. You will get the answer as 100. That means after executing these two statements, आपको p का वैल्यू मिला है 130, q का वैल्यू मिला है 100. Then you are printing the value of p and q. What is the value of p? That is 130 hash symbol. Value of q is 100. Clear? Then this function is returning the value of p. That means 130 will be returned and that will be stored in the variable s. लेकिन वो s का वैल्यू कहीं बाद में प्रिंट नहीं हो रहा है, so it is not required. So this will be the output. You will get this output. You have to write like this. That means the first statement is because of this print statement. जब पहली बार इस फंक्शन को कॉल किया गया था, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है. So you are getting 250 hash 150. When this statement is after executing this statement, you are again printing the value of r and s. So this statement is printed 250 hash 100. Then again the function is called. So the print statement is there. So the value is printed 130 hash 100. Hope this question is clear to you. Students, let's see the next question. Here the function name is check. The function name is check. So first this line will be read but it will be ignored. So the control will come here. This is the first line of the main segment of the program. यहाँ पर देखिए, you are calling the function check. Check function को call किया जा रहा है. You can see in the check function two parameters are there, n1 n2. दो पैरामीटर है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू दिया गया है. n1 इक्वल्स टू 1, n2 इक्वल्स टू 2. तो जब पहली बार फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यू कैन सी नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड. आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स n1 एंड n2. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जब हम वैल्यू पास नहीं करते हैं देन द डिफॉल्ट वैल्यू इज टेकन. दैट मीन्स वंस दिस फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू इज नॉट पास्ड. दैट मीन्स इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू. n1 का वैल्यू क्या लिया जाएगा? 1. n2 का वैल्यू क्या लिया जाएगा? 2. Then the statement inside the function check will be executed. What is happening in the function check? n1 equals to n1 plus n2. What is there in n1? You can see n1 में कौन सा वैल्यू है? 1. n2 में 2. So n1 equals to n1 plus n2. That means 1 plus 2. You will get 3 and that will be stored in variable n1. That will be assigned to the variable n1. So the value of n1 is 3. Second line, n2 plus equals to 1. This is an arithmetic assignment expression. यहाँ पर arithmetic assignment आप कैसे पहचानेंगे? n2 plus equals to 1. It means यहाँ पर ये arithmetic operator है. This is an assignment operator. It is a combination of arithmetic and assignment operator. It is equivalent to the expression n2 equals to n2 plus 1. इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स वी कैन राइट इट एज n2 प्लस इक्वल्स टू 1. यानी इसका मतलब क्या है? n2 इक्वल्स टू n2 प्लस 1. सो n2 का वैल्यू क्या है? 2. दैट मीन्स 2 प्लस 1 दैट विल बी 3. सो द वैल्यू ऑफ n2 इज 3. क्लियर? सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. नाउ यू आर प्रिंटिंग. प्रिंट n1 comma n2. You are printing the value present in n1 and n2. You can see that means आपको आउटपुट जो लिखना है ये आप रफ पार्ट में करेंगे. You will get the output as 3. The value of n1 is 3. Then n2 is again 3. यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू 3 हो गया है. The value is changed because of these expressions. Clear? Next, the control will come here. Again you are calling the function check. यहाँ पर फिर से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है. Here you are passing the argument. यहाँ पर देखिए आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. That means यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं लिया जाएगा. That means the value of n1 is now 2. n1 का वैल्यू 2 होगा. पहला जो भी वैल्यू होगा that will be given to the first parameter. सेकेंड जो वैल्यू होगा वो सेकेंड पैरामीटर को दिया जाएगा.
So n1 is 2, n2 is 1. Again n1 equals to n1 plus n2, that means 2 plus 1, again it will be 3. Second, n2 plus equals to 1, that means n2 equals to n2 plus 1. What is the value of n2? 1 plus 1, you will get it as 2. So the value of n2 is 2 now. You are printing the value of n1 and n2. n1 आपको पता है क्या है 3, the value of n2 is 2. So this is the output. This line is executed. Again the control will come here. This statement, this function is called, where value is printed, then it will execute the last one. Again you are calling the function check. यहाँ पर देखिए you are giving only one argument. यहाँ पर एक ही argument दे रहे हैं, so that will be given to the parameter n1. So n1 में कौन सा parameter लिया जाएगा? The value will be taken as 3. But n2 के लिए देखिए आपने कोई argument नहीं दिया है, that means it will take the default value 2. n2 के लिए default value दिया हुआ है. Then again n1 equals to n1 plus n2, that means 3 plus 2, it will be 5. और n2 में आपको क्या मिलेगा? n2 equals to n2 plus 1, that is 2 plus 1. You will get the answer as 3. So if you are printing n1, n2, you will get 5, 3. So this is the output. So in this way you can solve various output questions based on this chapter functions. Hope whatever questions we have seen today, that is clear to you. Keep learning, keep practicing.